We are living in one of the most difficult times of our age. हम अपने जमाने के बहुत ही मुश्किल समय में रह रहे हैं। We are living in a land which is becoming a land of dead people. हम उस भूमि पे रह रहे हैं जो कि मृतकों की भूमि बनती जा रही है। And we see that we are starving naturally and spiritually. हम देख सकते हैं कि हम प्राकृतिक रूप से और आत्मिक रूप से भूख से तड़प रहे हैं। And there is an enemy in the land which is not devil. हमारी भूमि पे एक दुश्मन है जो कि शैतान नहीं है। What is the name of this enemy? इस दुश्मन का नाम क्या है? The name of the enemy is curse. इस दुश्मन का नाम श्राप है। And today we see और आज हम देखते हैं the Lord is calling us to be the people of divine understanding. कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं अपने ईश्वरीय समझ के लोग होने के लिए। Let us turn to Genesis chapter 4 verse 11. आइए हम उत्पत्ति 4 और उसके 11 वचन को It देखें। reads, "So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand." और इसमें लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। We see one of the greatest tragedy of the first brothers in the earth. हम देखते हैं सबसे बड़ी समस्या जो कि इस पहले भाइयों में हुई थी। Whenever Cain went, he was cursed by the land. जहाँ भी कैन गया वो भूमि के द्वारा शापित था। The earth decided not to give him his fruits and he became a vagabond or a wanderer. जहाँ भी कैन गया पृथ्वी ने ये निर्णय लिया कि उसे कोई भी फल ना दे और वो एक भटकने वाला मनुष्य बन गया। Prosperity was completely stopped in his life. सफलता उसके जीवन में बिल्कुल रुक गई। We are badly affected by this virus called COVID-19. हम बुरी तरह से इस वायरस जिसका नाम कोविड-19 है उससे ग्रसित हैं। Unfortunately, whenever we read or watch news, we see frantic and deaths. दुर्भाग्यवश जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम सिर्फ उत्तेजना और मृत्यु को ही देखते हैं। There is nothing left that can satisfy us today. ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जो कि हमें तृप्त कर सके आज। The increasing number of patients is so worrisome. बीमार लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। But let me tell you one thing. पर मुझे आपको एक बात बतानी है। When your ears are tuned to listen the heartbeats of God, पर जब आप अपने कानों को तैयार करते हैं परमेश्वर की धड़कन सुनने के लिए, then you will assimilate the steps that you have to take in these difficult times. तब आप उन तरीकों को अपनाते हैं जो कि इन कठिन समयों में हमें करना चाहिए। And here I want to make a statement. और यहाँ मैं एक वाक्य बनाना चाहता हूँ। I want to tell you some truth from the Bible. मैं आपके सामने कुछ सत्य को प्रकट करना A चाहता हूँ। curse is never broken by prayer alone, एक श्राप केवल प्रार्थना करने से नहीं टूटता, but by setting things right. पर चीजों को सही तरीके से करने से टूटता है। Curse is broken when we follow the ways of God. एक श्राप तब टूटता है जब हम परमेश्वर के मार्ग पे सही तरीके से चलते हैं। Beloved people, प्रिय लोगों, do not live with mystical mindset today. अब रहस्यवादी मानसिकता से मत जिए आज। We must not see the situation naturally alone. हमें अपनी परिस्थितियों को प्राकृतिक रूप से ही नहीं देखना चाहिए, For our eyes are spiritual क्योंकि हमारी आंखें आत्मिक हैं, and God has revealed His mind in His word. क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन को और उसकी मर्जी को अपने वचन में हमें बता दिया है। So what is curse? तो ये श्राप क्या है? Curse in its simple definition is an absence of blessings. श्राप उसकी सामान्य परिभाषा में है कि आशीषों का ना होना। Whenever we are lacking of blessings, you must understand that we are already in curse. जब हम अपनी आशीषों को कम होते देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम श्राप में हैं। When curse comes in your life, जब श्राप आपकी जीवन में आता है, it will overtake your blessings. वो आपकी आशीषों पे हावी हो जाएगा। What is curse? श्राप क्या है? According to Deuteronomy chapter 28 verse 15. हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसका 15 में। But it shall come to pass, if you do not obey the voice of Lord your God, to observe carefully all His commandments and His statutes which I commanded you today, that all this curse will come upon you and overtake you. परंतु यदि तू
अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। So typical feature of curse is a lack of progress. विशिष्ट रूप जो श्राप का होता है वो ये है कि आपकी समृद्धि कम हो जाएगी। As in the case of Israelite, the nation who wandered for 40 years. जैसे हम देख सकते हैं इस्राएली राज्य में वो जो कि वो 40 साल तक भटकते रहे In circles in the wilderness under the curse of God. उस जंगल में गुलाई से परमेश्वर के श्राप के नीचे। So when curse comes in your life, तो जब श्राप आपके जीवन में आता है it blocks your progression. वो आपकी आशीषों को आपकी सफलता को रोक देता है। Your 11 days journey is turned into 40 years of wandering. आपके 11 दिन के सफर को वो 40 साल के भटकने में बदल देता है। Whenever curse comes in our lives, जब भी श्राप हमारे जीवन में आता है it blocks our growth in Christ spiritually. वो हमारी दौड़ को कम कर देता है परमेश्वर में आत्मिक रूप Now, से। how to recognize that a person or a nation is under a curse? हम कैसे जान सकते हैं कि एक व्यक्ति या एक राज्य श्राप में है? Number 1, पहला, carnal control. संसारिक नियंत्रण। When you are controlled by carnality, you must understand that you are already in curse. जब आप शरीर के नियंत्रण में चलते हैं तब आपको समझ जाना चाहिए कि आप श्राप में हैं। When we walk by the flesh and not by the spirit, we are in curse. जब हम शरीर के चलाए चलते हैं और आत्मा के चलाए नहीं चलते तब हम श्राप में होते हैं। In 1 Corinthians chapter 3 verse 3 it reads, "For you are still carnal, for where there are envy, strife and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men?" हम पहला कुरिन्थियोस का 3 और उसके वचन 3 में पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुम अभी तक संसारिक हो, क्या तुम संसारिक नहीं हो? जबकि तुम में आपसी ईर्ष्या और कलह मौजूद है और तुम संसारिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हो। The second symptom of curse is unsuccessfulness. दूसरा चिन्ह श्राप का ये है असफलता। Unsuccessfulness in marriage. शादी में असफलता। Deuteronomy chapter 28 verse 30 व्यवस्था विवरण 28 उसका 30 it reads, "You shall betroth a wife, but another man shall lie with her." उसमें पढ़ते हैं, तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। There will be constant problems in marriage. आपके जीवन में, आपकी शादीशुदा जीवन में लगातार परेशानियां आएंगी। It affects his children. जो अगला है वो है उसके बच्चों में परेशानियां आएंगी। Deuteronomy chapter 28 verse 32 it says, "Your sons and your daughters shall be given to another people, and your eyes shall look and fail with longing for them all day long." व्यवस्था विवरण 28 उसका है, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां दूसरी जाति के लोगों को दे दी जाएंगी, तुम्हारी आंख सारे दिन बच्चों को देखने के लिए डटकी लगाए रहेगी, क्योंकि तुम बच्चों को देखना चाहोगे। In present context, आज के समय में your children will marry into another religions. आपके बच्चे दूसरे धर्मों में शादी करेंगे। Deuteronomy chapter 28 verse 41. व्यवस्था विवरण 28 उसका 41 You shall beget sons and daughters, but they shall not be yours, for they shall go into captivity. तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां होंगी, किंतु तुम उन्हें अपने पास नहीं रह सकोगे, क्योंकि वे पकड़ कर दूर ले जाए जाएंगे। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means your children will no longer submit to you. इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे आपके अधीन नहीं रहेंगे। They will be captives of the world and Satan. वो गुलाम बन जाएंगे दुनिया के और शैतान के। Then there will be unsuccessfulness in business. फिर आपके व्यवसाय में असफलता आएगी। Deuteronomy chapter 28 verse 30 it reads, "You shall plant a vineyard, but shall not gather its grapes." व्यवस्था विवरण 28 उसका 30 में लिखा है, तुम अंगूर का बाग लगा सकते हो, किंतु उससे कुछ भी इकट्ठा नहीं कर सकते। You will toil in the vineyard day and night, but nothing will come in your hands. तुम दिन रात
अपने अंगूर की बारी में मेहनत करोगे पर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। Deuteronomy chapter 28 verse 31 it says, your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it. व्यवस्था विवरण 28 उसका 31 में लिखा है, तुम्हारा बैल तुम्हारी आंखों के सामने मारा जाएगा, किंतु तुम उसका कुछ भी मांस नहीं खा सकते। You will not be able to enjoy your money. तुम अपनी पैसों को आनंद नहीं उठा पाओगे। Then the person faces deterioration. फिर उसके बाद व्यक्ति को कमी होने लगेगी। Matthew chapter 5 verse 13. मत्ती उसका 5 उसका 13 में लिखा है, You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. तुम सचमुच मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि वो उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। Now what does it mean to us? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? It means you shall not be able to live for the intended purpose in the earth. इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन के उपेक्षित उद्देश्य को नहीं पूरा कर पाएंगे। The next sign of cursed person is rejection. दूसरा चिन्ह एक श्रापित व्यक्ति का ये है अस्वीकार्यता। Deuteronomy chapter 28 verses 37 and 68, and it reads, and you shall become an astonishment, a proverb and byword among all nations where the Lord will drive you. व्यवस्था विवरण उसका 28 उसका 37 और 68 ये कहता है, जिन देशों में यहोवा तुम्हें भेजेगा उन देशों के लोग तुम लोगों पर आए विपत्ति को सुनकर स्तंभ रह जाएंगे, वे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। What does it mean to us? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? You shall become unemployed. आप बेरोजगार हो जाएंगे। You shall experience a tragic poverty in your life. आप अपने जीवन में बहुत ही गंभीर गरीबी को महसूस करेंगे। The next symptom is disease. अगला चिन्ह है बीमारी। Your body will become a hub of all the diseases. आपका शरीर बीमारियों का केंद्र बन जाएगा, such as physical diseases, जैसे कि शारीरिक बीमारी, mental diseases. मानसिक बीमारी। Deuteronomy chapter 28 verse 28. व्यवस्था विवरण 28 उसका 28। The Lord will strike you with madness and blindness and confusion of heart. यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। Now let me tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना If चाहता you हूँ, experiencing any of these things, अगर आप इनमें से कोई भी चीज को महसूस कर रहे हैं अपने जीवन if में, you are going through something in your life, अगर आप किसी इन चीजों को अपने जीवन में देखते हैं, you must know by now that you are surrounded by a curse. आपको अभी तक समझ जाना चाहिए कि आप कर्ज से घिरे हुए हैं। But I have a good news for you. पर मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। There is a way to overcome curse. एक तरीका है जिससे आप अपने श्रापों पे जय पा सकते You हैं। can definitely break any curse in your life and in your nation. आप निश्चित रूप से अपने जीवन में और अपने राज्य के श्राप को तोड़ सकते हैं। For our God is a God of provision. क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रबंध का परमेश्वर है And He is a God of solutions. और वो उपाय का परमेश्वर है। Let me tell you one thing again. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ फिर से। A curse is never broken by prayer alone. एक श्राप केवल प्रार्थना करने से नहीं टूटता है। You have to do something in order to break curse. आपको कुछ काम करना पड़ेगा अपने श्राप को तोड़ने के लिए। Curse is not broken by rebuking it, but by overcoming it practically. आपका श्राप झिड़कने से या डांटने से उसे नहीं जाएगा, बल्कि उससे व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से उस पे जय पाने से जाएगा। And if God is telling us that a person is in curse, पर अब जब परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति श्राप में है, if God is telling us that a nation is in curse, जब परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि एक राज्य श्राप में है, then the same God is also telling that how to overcome the curse. तो वही परमेश्वर हमें ये भी बता रहे हैं कि हम उस श्राप से कैसे जय पाएं। And definitely you can overcome curse in your life. और निश्चित रूप से आप अपने जीवन के श्राप को तोड़
Now in our next broadcast we shall discuss the ways to overcome curse. हम अपने अगले प्रसारण में आपसे बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिनसे हम श्रापों को तोड़ सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।